Hello, all of you. I welcome you on your very own YouTube channel मनोज जहांगीर क्लासेस। और आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 4, जो बेसिकली यूनिट नंबर 6 ही है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से चलें तो। लेकिन उसी के अलग अलग पार्ट हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी में देखना चाहते हैं तो ये टॉपिक जो है इसकी 2.4 चैप्टर नंबर 2 का 2.4 पॉइंट है ये। 2 is indicating chapter number, 4 is pointing out the topic number. So इसको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इंडस्ट्री एंड ट्रेड। तो उसकी हम बात करेंगे। यहाँ पर हमने बोला इसको स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ फ्रॉम 1947 टू 1990। तो इसकी कुछ बेसिक चीजें हम लोग सबसे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले छोटी छोटी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। आई लव दिस कोट, मुझे काफी अच्छा लगता है, तो इसको एक स्लाइड पे मैंने अलग से आप लोगों के लिए लिखा है। यू कैन यूज इट समवेयर जहां पर आपको जरूरत है। If agriculture is the backbone of the economy, industry is the energy. मुझे अच्छा लगा, मैंने लिख लिया यहाँ पे, आप लोग भी यूज कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? कोई अलग चीज नहीं है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज द बिल्डिंग एंड ग्रोइंग ऑफ इंडस्ट्रीज। जब आप इंडस्ट्रीज को ग्रो करने लगते हैं, इंडस्ट्रीज को बिल्ड करने लगते हैं, building and growing of industries is basically industrial development in the economy. इसका मतलब होता है establishing more and more industries, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज आप लगाने लगते हैं। इसका मतलब होता है ओल्ड और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी टूल्स को रिप्लेस कर दिया जाता है मशीन से। सो वी स्टार्ट यूजिंग मोर एंड मोर मशीन्स rather than doing it manually. Human or labor is replaced by mechanical power, and it helps in like increasing the standard of living. It increases the job growth. It is responsible for more productivity, and it sustains growth because it is dependent. Now the growth of the economy is dependent on mechanical power. Human efforts पे आप इतने rely नहीं कर सकते, mechanical power पे depend करती है। I will not suggest you that you will remember these things, but ये मेरी खुशी के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। What is the importance of industrialization? It is basically responsible for rapid growth of income. Production ज्यादा होता है, output ज्यादा होता है, national income भी increase होती है। One of the main objective of 5-year planning in India. It is a great source of employment. Almost 17% people are employed in industrial sector only. It is helpful in utilizing the the available resources in the economy, because in agriculture we cannot use all the resources, but agriculture requires labor as well. But here we require more and more machineries, and with the help of machineries we are able to utilize the we would be able to make fuller utilization of the available resources. We sell machineries and all such things to the rest of the world, and because of foreign trade we sell goods and services as well, and that's a ग्रेट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बाहर से पैसा आता है हमारे पास, डॉलर्स आते हैं, युआन आता है, येन आता है, यूरो आता है, दिरहम दिनार, ये सारी चीजें आती हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल। एग्रीकल्चर को जितने भी ट्रैक्टर, थ्रेशर, जो भी सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो एग्रीकल्चर देता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस ग्रोथ, बिकॉज इफ द इंडस्ट्रीज आर सेटअप इन द बैकवर्ड एरियाज, तो बैकवर्ड में ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करता है, एम्प्लॉयमेंट देता है, बैकवर्ड एरिया को डेवलप करता है। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस डेवलपमेंट एज वेल। सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ होती है इसकी वजह से। whenever industries would be there, then infrastructural facilities are also required. Energy, drinking water facilities, transport, क्योंकि इंडस्ट्रीज वहीं पे लगती हैं, रॉ मटेरियल लाना ले जाना, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। फॉर दैट यू विल रिक्वायर infrastructure. So it leads to infrastructural growth as well. And it is also in the favor of nations' security, because if you are purchasing the defense goods from rest of the world for your own country, so you are putting the national security of your own country at risk. So आपको अपने खुद की कंट्री में प्रोड्यूस करना चाहिए। You should not be dependent on other countries. तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, व्हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट। मैंने एक्चुअली एक्सप्लेन किया है, ये एक एक 2-4 सेकंड के लिए मैं एक स्लाइड रख रहा हूँ, सो दैट अगर आपको कुछ रिक्वायर्ड हो तो आप इसमें काम की चीज निकाल लें। एनसीईआरटी में इतना डिटेल में कहीं पर भी नहीं दिया गया है, तो मैंने भी इसको इतना ज्यादा टाइम देना ठीक नहीं समझा कि हाँ, एक ये चीजें बता दी जाएं, आपके साथ डिस्कस कर ली जाएं, दैट
फीचर्स, इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है क्या नहीं है, एंड यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल सच थिंग्स। तो ये 2-4 सेकंड के लिए मैं एक एक स्लाइड यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, एंड जो भी काम की चीज हो आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ पर। एंड दिस इज इट। यहाँ पर इसके बाद अगर हम लोग बात करें ऑल ऑफ यू, देन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन इमर्ज होता है। यू पीपल नो दिस थिंग दैट वी वर we follow, we Indian economy is basically an it's a mixed economy, and पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत ज्यादा था आफ्टर 1947। क्यों था, क्या जरूरत थी, क्या चीजें थी ऐसी, तो वहीं से कहानी सारी स्टार्ट हुई। सो व्हाई वाज पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर was it was given a leading role in the industrial development। ये 1991 से पहले की बात बता रहा हूं मैं। ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड, जब प्लानिंग पीरियड की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है ईयर 47 टू 1991 या 1990 तक, क्योंकि जुलाई में तो हमने एलपीजी वगैरह अडॉप्ट कर ही लिया था। इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है दैट व्हाट आर द रिस्पांसिबल फैक्टर्स नेसेसिटेटिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हमें जरूरत क्यों पड़ी। एज इट इज मैंने माइन्यूट मॉडिफिकेशन के साथ एनसीईआरटी से उठाया है। बिकॉज वी वर हैविंग लैक ऑफ कैपिटल, वी मींस द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, नॉट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास पैसा था नहीं, भी होता है तो गवर्नमेंट नीड्स पूरी करने के लिए चाहे बोरो करेगी या इन्वेस्ट तो करना ही पड़ता है। लो इंड्यूसमेंट ऑफ डेवलपमेंट, द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स वर नॉट इन फेवर to increase or to invest that particular amount in the Indian economy because the size of market was very small at that time। आज के टाइम के जितना बड़ा नहीं था उस टाइम में मार्केट का साइज। people were not in favor of spending more money। आज तो शोशाबाजी में जिंदगी कट जाती। so and government wanted to spread social justice over all the you can say over the economy, basically various sectors of the economy, various states of the economy, to all the people of the economy। so वो चाहते थे कि सोशल जस्टिस हर किसी को मिले। इन सारी चीजों से, ये इन चीजों की वजह से हमने जो है गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा हो गया। लेट्स टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स वन बाय वन। लैक ऑफ कैपिटल, मैं लैक ऑफ कैपिटल नहीं बोलूंगा, मैं लैक ऑफ इंटेंशन बोलूंगा, लैक ऑफ इंटेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो इंडियन इंडस्ट्रीज डिड नॉट हैव the capital to undertake investment in industrial ventures। वैसे इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने के लिए भी बहुत ज्यादा पैसा रिक्वायर्ड था, required for the development of our economy। At the time of independence, industrial development required a big push, a big investment, and it was out of the capacity of the big established entrepreneurs, industrialists at that time like Tata, Birla। इन लोगों की बस की बात नहीं थी इतना ज्यादा पैसा, इतना ज्यादा बिग पुश इंडियन इकोनॉमी को देना। सो वी रिलाइड ऑन पब्लिक सेक्टर। कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। so it was the sole responsibility of the government at that time to take care and to give that much investment, to give a big push in the form of huge amount of investment in the Indian economy for the Indian industries। बहुत नाम की थी फर्म्स, मैंने बताता हूँ आपको कि कॉटन, जूट, आयरन, स्टील, ये कुछ गिनी चुनी इंडस्ट्रीज थी, बहुत ज्यादा फेमस, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपैंडेड इंडस्ट्रीज नहीं थी इंडिया में। लो इंड्यूसमेंट ऑफ डेवलपमेंट, सो द इंडियन मार्केट साइज वाज नॉट बिग इनफ to encourage the industrialists। आज in today's scenario all the producers would like to capture the Indian market। MI, Vivo, Xiaomi, the electronic industry, IT industry, like they want to sell their products in Indian market। every entrepreneur, international producer, global industrialist would like to capture Indian market right now because the market size has it's very big। So at that time the market size was not big enough, so industrialists were somewhere hesitating to invest in Indian economy। so industrialists to undertake major projects even if they had capital to do so, वो थोड़ा सा hesitate हो रहे थे क्योंकि बहुत major project थे, बड़ा investment था, and even if they were having the capital they were hesitating, तो वो इस favor में नहीं थे। low level of income, low level of demand were the factors responsible for small size of market। लोगों की इनकम कम थी, डिमांड कम थी, उसकी वजह से
So no one was willing to invest, the private entrepreneurs. Again, कौन करेगा काम? आएगा कैप्टन अमेरिका बचाने के लिए, आयरन मैन आएगा बचाने के लिए। तो ऐसी चीजें कि गवर्नमेंट आएगी बचाने के लिए। सो पब्लिक सेक्टर वाज द ओनली ऑप्शन बाय व्हिच द डिमांड कैन बी रेज्ड। तो गौतम में गौतम सिटी में अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो बैटमैन आएगा। तो यहाँ पर भी अगर कोई लो इंड्यूसमेंट ऑफ डेवलपमेंट है तो गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट विल इन्वेस्ट। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट। द लास्ट पॉइंट इज ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई वुड लाइक टू टेल यू दैट अगेन एंड अगेन दीज पॉइंट्स आर कमिंग हियर। इक्वालिटी की हम बात करते हैं जो एक प्लानिंग ऑब्जेक्टिव भी था, तो यहाँ पर उन प्लानिंग ऑब्जेक्टिव की बात भी आ जाती है। इट वाज वन ऑफ द प्लानिंग ऑब्जेक्टिव, सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी, हर किसी को बेनिफिट मिले, ये सारी चीजें। सो द डिसीजन टू डेवलप द इंडियन इकोनॉमी ऑन सोशलिस्टिक लाइंस led to the policy of state controlling the commanding heights of the economy. So ये थोड़ा सा गलत हुआ that we were going on socialistic lines कि government will undertake all such things, government will undertake the production, and government will take care of all such things, and the benefits will reach to each and every section of the society. ऐसा हुआ नहीं। गवर्नमेंट ने सब कुछ कंट्रोल कर लिया, गवर्नमेंट के लॉसेस इंक्रीज होने लगे आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। 20-30 साल बाद, 40 साल बाद, उसके बाद तो फिर हमें एलपीजी पॉलिसी लेके ही आनी पड़ी। दिस मेंट दैट द स्टेट वुड हैव कंप्लीट कंट्रोल, पूरा जो करेगी गवर्नमेंट करेगी ऑफ दोज इंडस्ट्रीज दैट वर vital for the economy. So all those vital industries were taken over by the government only, and the private role, जो private sector था, the policies of the private sector would have to be complementary to those of the public sector. कि ये जो गवर्नमेंट का रोल ज्यादा सिग्निफिकेंट था, एंड द इंडस्ट्रीज विच वर देयर, इनको हमने लाइसेंस जैसी चीजों से, इनको हमने कोटा जैसी चीजों से, टैरिफ जैसी चीजों से बांध के रखा। तो बहुत ज्यादा कंट्रोल मैनर में इन सारी चीजों को हमने रखा, बहुत ज्यादा कंट्रोल किया गया, इनको एक्सपेंड नहीं हो पाए इतने। समवेयर दे क्रिएटेड अ प्रॉब्लम फॉर इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद तो एलपीजी लेके आनी पड़ी हमें। तो ये सारे फैक्टर्स हैं which were responsible for increasing role of the government in our Indian economy before 1991 or during planning period. So this is all about this video. All of you, if you need to watch some more videos related to IED or macroeconomics, you can check out the card section which is indicated by this logo, or you can go and check the description given below, and you will be able to find out a lot of playlists regarding the important questions, IED videos, macroeconomics video. So in this video we are just putting a full stop here, and see you in your next class, all of you. Thank you so much for watching this video.